گھر میں کھانا بناتی ہیں، ڈلیور کروا دیتی ہیں، اچھی مصروفیت ہو جاتی ہے. جنہیں یہ انتظار ہوتا ہے کہ نواب صاحب کا چیک آئے تو ان کی فیسیں زیادہ ہو سکے. اکرم صاحب نے یہ اپلیکیشن کب دی آپ کو؟ نہیں، یہ اپلیکیشن اکرم صاحب نے نہیں دی. کچھ نہیں، سب خیریت ہی ہے. بیٹا جب تم بہت کچھ کرتے ہو نا تو سب کچھ کو کچھ نہیں میں تبدیل کرنے کے لیے مجھے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے صرف مہک نظر آتی رہتی ہے مجھے. پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا. گڈ لک. عجیب سی مصیبت ہے. ساری دوستیں نا آج مذاق اڑائیں گی میرا کہ ندا اب آئے میں آ گئی. کوئی مذاق نہیں اڑاتا. مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا. آپ ایک کام کریں، آپ جلدی سے بابا کو بھیجیں، وہ مجھے لے کے جائیں یہاں سے. نہیں ندا، تمہیں ہمت کرنی ہوگی. آئی ایم شیور اس سے تمہیں نہیں پہچانا ہوگا. ٹائم ختم ہو گیا، سب لڑکیاں پیپر دیتے ہیں اپنے. میں نے تم سے کہا تھا نا کچھ حاصل نہیں ہونے والا. میری بات مانو، مہک کو بھول جاؤ. نہیں بھول سکتا. وہ زمین کی ساتویں تہ میں بھی چھپی ہوگی نا. اگر لڑکے نے تو زندگی اجیرن کر دی ہے. مہک صحیح کہتی ہے، اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا تم لوگوں کو. آتے ہوئے کہا اور چادر کو اچھے سے اپنے گرد لپیٹ کر ٹیکسی میں بیٹھ گئی، جبکہ دل تو صرف رحاب میں اٹکا ہوا تھا. اس لیے اس نے اپنے گھر جانے کے بجائے رحاب کے گھر جانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ اس کے بابا کو بتا سکے. یا اللہ، تو میری روح کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اس کی مدد کرنا میرے مالک، اسے ہر طرح کی آفت سے محفوظ رکھنا. یا اللہ، تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ میرے مالک، اسے ہر طرح کی گندگی اور حفظ سے محفوظ رکھنا. دل ہی دل میں اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی، وہ اپنے رب سے مخاطب تھی. یہی ہمارے دور کا المیہ ہے کہ یہاں ایک لڑکی کو اپنی جان سے زیادہ عزت کی فکر ہوتی ہے. جہاں ہر طرف بھیڑیے گھومتے ہیں، کوئی اپنوں کے بھیس میں تو کوئی غیروں کے بھیس میں، یہاں تو گھر میں بھی لڑکیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے. اللہ ہر بیٹی کی عزت کو محفوظ رکھے. آمین. ہمشہ ہاتھ میں پیسے تھامے اپنی ہی سوچ میں گم تھی. جب ٹھاکا آواز سے دروازہ کھول کر آئی، کمرے میں داخل ہوا تو اس نے جلدی سے پیچھے چھپا دیے، مگر پھر بھی مقابل کی لڑکا نظریں یہ منظر دیکھ چکی تھی. اے کک، کیا چھپایا ہے تو نے؟ حرام زادی، کس کا خط ہے تیرے پاس؟ اس کے باپ نے نشے میں لڑکھڑاتے ہوئے زبان پہ در پہ کئی سوالات کی بوچھاڑ کر دی اور ساتھ ہی گالیاں بھی بک دی، جس سے رمشا نے اذیت کی انتہا سے آنکھیں بند کرتے اپنے لہو ہوتے دل کو بامشکل سے سنبھال لیا. بابا بابا، ایسا کچھ نہیں ہے. مم تو یہ بس کتاب چھپا رہی تھی. اس نے آنسو ضبط کرتے کمزور صفائی پیش کی، جبکہ جانتی تھی کہ اس کا باپ کسی بھی بات کا یقین نہیں کرے گا. اور ہوا بھی یہی، جب وہ ایک دم اتنی زور سے دھاڑ کے رمشا کا دل کانپ کر رہ گیا. چپ کر بدذات زبان لڑکی، وہ بھی مجھ سے؟ تو تیری زبان گدی سے کھینچ لوں گا کمینی. تو بھی بدذات ہے اپنی ماں کی طرح. اس نے زبان سے آگ اگلتے ہوئے اس کی روح کو کئی اور زخموں سے نواز دیا، اور اتنی بھی اجازت نہیں دی کبھی کہ وہ ان زخموں پر سی ہی کر سکے. چل، میرا منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ دفع ہو یہاں سے اور کھانا لا میرے لیے. اس نے نفرت سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ جلدی سے جان بخشی ہونے پر کمرے سے باہر چلی گئی، اور وہ وہیں اس کی چھوڑی چارپائی پر گرتا آنکھیں بند کر کے دیا زمان سے بے خبر ہو گیا. رمشا کچن کے نام پر مٹی سے بنے اس چھوٹے سے کمرے میں آ گئی، اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر ایک دفعہ پھر اپنی قسمت پر زاروں قطار رونے لگی. آخر کیا قصور تھا اس کا جو اسے دنیا میں صرف محرومیاں ہی مل رہی تھی. امی جان، یہ آپ کے گال پر کیا ہوا؟ اپنے چھوٹے سے ہاتھوں سے اپنی ماں کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر وہ پوچھ رہی تھی، اور اس کی ماں آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو واپس دھکیلنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی. پہلا آپ نے نماز نہیں پڑھی، نہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا مجھے دی ہے
उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा तो हैरानगी से अपनी माँ को देखने लगी। अम्मी, नमाज तो मैंने नहीं पढ़ी तो अल्लाह ताला ने आपको क्यों सजा दी? उसने अपनी बड़ी बड़ी सुनहरी आंखों में हैरानगी समोए अपनी माँ से पूछा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। जी मेरी जान, जब हम अल्लाह से दोहरी इख्तियार करते हैं, नमाज और कुरान को भूल जाते हैं, तो हमारे करीबी रिश्तों में हमें आजमा कर देख लेता है ताकि हम उसकी तरफ लौट जाएं। उसे गोद में बिठाए उसकी माँ उसे खुदा के कुर्ब का सबक सिखा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी कुछ भी गलत सीखे। अम्मी, आपको दर्द क्यों हो रहा है ना? उसकी आंखें फौरन पानी से भर गईं। नहीं चंदा, आप तो मेरी गुड़िया हैं, आपके लिए तो मैं क्या क्या भी सह सकती हूँ, लेकिन मेरी बेटी को वादा करना होगा कि वो किसी भी हाल में नमाज और कुरान को नहीं छोड़ेगी। उसकी आंखें चूमते उसकी माँ ने मोहब्बत से पूछा तो वह फौरन नफी में सर हिला गई। ना जाने कितना ही वक्त हो गया था। उसे यहाँ बैठे अपनी माँ को याद करके एक दफ़ा फिर से उसकी आंखें बरसने लगी थी, मगर वो अपनी माँ से सीखा सबक कभी नहीं बोल सकती थी, इसलिए आंसू साफ करती नमाज के लिए उठ खड़ी हुई। वो बुरी नहीं थी, ना ही वो बुरी बन सकती थी, मगर उसके बाप का रवैया उसे बुरा बनाना चाहता था। उसके अंदर मौजूद मासूमियत को ख़त्म करता था। उसका शक करना उसे अजियत देता था। जब तकलीफ हद से ज़्यादा हो जाए तो इंसान खुद ब खुद मनफी सोचों के गिर्द फंस जाता है। तरह तरह के शर उसके अंदर सर उठाने लगते हैं, और यही रमशा के साथ हो रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी जान से अजीज दोस्त से भी हसद करने लगी थी। DSP तलाल स्पीकिंग। गाड़ी स्टार्ट करते उसने रोड पर डाली और मोबाइल से आरती मुसलसल कॉल को ओके करते मोबाइल कान से लगाया और अपने मखसूस लहजे में बात का आगाज किया। दूसरी जानिब से ना जाने क्या कहा गया था कि उसका माथा पल में शकन हुआ था। हाँ, इस केस को मैं खुद हैंडल करूँगा। जी, आई की टेंशन तुम मत लो। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। कहते उसने कॉल डिस्कनेक्ट की और मोबाइल सामने रखकर गाड़ी ड्राइवर करने लगा, मगर उसे कुछ तो महसूस हो रहा था। गाड़ी में कोई गैर मामूली तब्दीली ज़रूर थी, मगर क्या? उसका दिमाग सेकंड के आखिरी हिस्से में अलर्ट हुआ था। उसने जल्दी से रिवॉल्वर निकाला और गाड़ी एक तरफ लगाते गन लोड की। उसे पक्का यकीन था कि गाड़ी में ज़रूर कोई और भी है, मगर कौन? शायद कोई मुजरिम या फिर दुश्मन। उसके दिमाग ने अपने खदशात जाहिर किए तो उसने फौरन सीट पीछे करते उसने गुम सीट के नीचे लपेटे वजूद पर तान दी, मगर सामने मौजूद हस्ती को देखकर तो तलाल का दिमाग सही मानों में घूम गया था। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? बाहर निकलो। वही कैफे वाली लड़की आंखें सख्ती से बंद किए छुपने की कोशिश कर रही थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेता है। बिल्कुल ऐसे ही कि एक फूल को तलाल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई, जिससे वह फौरन छुपा गया। कुछ देर खामोशी महसूस करते उसने चोरी चोरी एक आंख खोली तो सामने तलाल को घूरते पाकर फौरन से दोबारा आंखें बंद कर लीं, जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। आंखें खोलो फौरन, वरना भी गोली मार दूंगा। तलाल ने गुस्से से कह दी तो फिर गन उस पर तानी तो डरते हुए फौरन आंखें पूरी की पूरी खोल गई। उठो और बैठो। एक और हुक्म सुनाया गया, जिसे वो फौरन मान गई और फिर अपनी फटी हुई चादर को जोर से पकड़ लिया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? कड़े जितनों से पूछता उसकी जान निकाल रहा था। मैं लड़की हूँ। आंखें थोड़ी सी ऊपर उठाकर बमुश्किल जवाब दिया गया तो तलाल का दिल किया उसकी समझदारी पर अश अश कर उठे। गिरे गिरे वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, उसने गुस्से से कहा तो अब की बार मुकाबिल के चेहरे पर भी नागवारी साफ झलक रही थी। इतने सवाल पूछ रहा, अगर मजबूरी ना होती तो अब तक उसका सर फाड़ चुकी वही कमीना कहीं का।
नागवारी सा दिल ही दिल में सोचने वो खामोशी से बैठी उसे देख रही थी। मुझे नहीं पता था ये तुम्हारी गाड़ी है। 2 लड़के मुझे तंग कर रहे थे, उनसे जान बचाने के लिए मैं उस गाड़ी में घुस गई। दिल में जल तो जलाल तो का विर्द करते उसने आहिस्तगी से जवाब दिया तो तलाल ने मशकूक नजरों से उसे देखते गन वापस रखी और गाड़ी स्टार्ट कर दी, और वो दिल ही दिल में बच जाने पर खुदा का शुक्र कर रही थी कि उस बला से जान छूटी। अस्सलाम वालेकुम। ताइशा जो कि बारिश में मुकम्मल भीग चुकी थी और 20 मिनट की अनथक मेहनत के बाद उसे एक टैक्सी मिल ही गई। परेशानी से उसकी जान निकल जा रही थी। रूह की तबीयत का सोचते ही उसके आंसू खौफ खुद निकलना शुरू हो गए तो टैक्सी वाले को लेकर मतलूबा जगह पहुंची, मगर वहां रुहाब तो क्या उसका नामो निशान तक नहीं था। अब सही मानों में ताइशा के हाथ पांव फूले थे। हर तरफ छान मारा गया मगर वो कहीं नहीं थी। दिल में बड़े बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे। उसे जी भरकर गुस्सा भी आ रहा था। ना ही वो जिद करती और ना ही रुहाब के साथ ये सब होता। जब कुछ ना हो सका तो वो वहीं पहुंचकर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। आंखें सुर्ख हो चुकी थीं और जिस्म भी मुसलसल बारिश में भीगने की वजह से हल्का हल्का कपकपा रहा था। होंठ भी सर्दी की वजह से नीले हो चुके थे। बाजी, आपको जाना है कि नहीं? और भी काम है। वो रोने में मसरूफ थी जब टैक्सी ड्राइवर की झुंझलाई हुई आवाज़ से उसके आंसुओं को ब्रेक लगी तो वो होश की दुनिया में वापस आई। जज जी, आप मुझे गुलबर्ग टाउन ले चलें, उसने बमुश्किल खुद पर काबू पाते हुए कहा और चादर को अच्छे से अपने गिर्द लपेट कर टैक्सी में बैठ गई। जबकि दिल तो सिर्फ रुहाब में अटका हुआ था, इसलिए उसने अपने घर जाने की बजाय रुहाब के घर जाने का फैसला किया था ताकि उसके बाबा को बता सके, या अल्लाह, तू मेरी रूह को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना, उसकी मदद करना मेरे मालिक, उसे हर तरह की आफत से महफूज रखना। या अल्लाह, तुझे तेरे रहीम होने का वास्ता मेरे मालिक, उसे हर तरह की गंदगी और हवस से महफूज रखना। दिल ही दिल में उसकी सलामती की दुआएं मांगती वो अपने रब से मुखातिब थी। यही हमारे दौर का अलमिया है कि यहाँ एक लड़की को अपनी जान से ज़्यादा इज्जत की फिक्र होती है। जहाँ हर तरफ भेड़िए घूमते हैं, कोई अपनों के भेष में तो कोई गैरों के भेष में। यहाँ तो घर में भी लड़कियों की इज्जत महफूज नहीं है। अल्लाह हर बेटी की इज्जत को महफूज रखे, आमीन। हमशा हाथ में पैसे थामे अपनी ही सोच में गुम थी। जब ठाका आवाज़ से दरवाज़ा खोल कर आई, कमरे में दाखिल हुआ तो उसने जल्दी से पीछे छुपा दिए, मगर फिर भी मुकाबिल की दरगाह नजरें ये मंजर देख चुकी थी। ऐ कुक, क्या छुपाया है तूने? हरामजादी, किसका खत है तेरे पास? उसके बाप ने नशे में लड़खड़ाते हुए जबान पे दर पे कई सवालात की बौछार कर दी और साथ ही गालियां भी बक दी, जिससे रमशा ने अजियत की इंतहा से आंखें बंद करते अपने लहू होते दिल को बामुश्किल से संभाल लिया। बाबा, ऐसा कुछ नहीं है मम, तो ये बस किताब छुपा रही थी। उसने आंसू जब्त करते कमजोर सफाई पेश की, जबकि जानती थी कि उसका बाप किसी भी बात का यकीन नहीं करेगा। और हुआ भी यही, जब वो एकदम इतनी जोर से झाड़ के रिमशा का दिल कांप कर रह गया। चुप कर बदजात जबान लड़की, वो भी मुझसे, तो तेरी जबान गद्दी से खींच लूंगा। कमीनी, तू भी बदजात है अपनी माँ की तरह।
اس نے زبان سے آگ اگلتے ہوئے اس کی روح کو کئی اور زخموں سے نواز دیا اور اتنی بھی اجازت نہیں دی کبھی کہ وہ ان زخموں پر سی ہی کر سکے۔ چل، میرا منہ کیا دیکھ رہی ہے، دفع ہو یہاں سے اور کھانا لا میرے لیے۔ اس نے نفرت سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ جلدی سے جان بخشی ہونے پر کمرے سے باہر چلی گئی اور وہ وہیں اس کی چھوڑی چارپائی پر گرتا آنکھیں بند کر کے دیا جمان سے بے خبر ہو گیا۔ رمشا کچن کے نام پر مٹی سے بنے اس چھوٹے سے کمرے میں آ گئی اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر ایک دفعہ پھر اپنی قسمت پر زاروں قطار رونے لگی۔ آخر کیا قصور تھا اس کا جو اسے دنیا میں صرف محرومیاں ہی مل رہی تھی۔ امی جان، یہ آپ کے گال پر کیا ہوا؟ اپنے چھوٹے سے ہاتھوں سے اپنی ماں کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر وہ پوچھ رہی تھی اور اس کی ماں آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو واپس دھکیلنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کل آپ نے نماز نہیں پڑھی، نہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا مجھے دی ہے، اس کی ماں نے مسکراتے ہوئے کہا تو حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ امی، نماز تو میں نے نہیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں سزا دی؟ اس نے اپنی بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں حیرانگی سموئے اپنی ماں سے پوچھا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ جی میری جان، جب ہم اللہ سے دوری اختیار کرتے ہیں، نماز اور قرآن کو بھول جاتے ہیں تو ہمارے قریبی رشتوں میں ہمیں آزما کر دیکھ لیتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف لوٹ جائیں۔ اسے گود میں بٹھائے اس کی ماں اسے خدا کے قرب کا سبق سکھا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کچھ بھی غلط سیکھے۔ امی، آپ کو درد کیوں ہو رہا ہے نا؟ اس کی آنکھیں فوراً پانی سے بھر گئیں۔ نہیں چندا، آپ تو میری گڑیا ہیں، آپ کے لیے تو میں کیا کیا بھی سہ سکتی ہوں، لیکن میری بیٹی کو وعدہ کرنا ہوگا کہ وہ کسی بھی حال میں نماز اور قرآن کو نہیں چھوڑے گی۔ اس کی آنکھیں چومتے اس کی ماں نے محبت سے پوچھا تو وہ فوراً نفی میں سر ہلا گئی۔ نہ جانے کتنا ہی وقت ہو گیا تھا اسے یہاں بیٹھے اپنی ماں کو یاد کر کے ایک دفعہ پھر سے اس کی آنکھیں برسنے لگی تھیں، مگر وہ اپنی ماں سے سیکھا سبق کبھی نہیں بول سکتی تھی، اس لیے آنسو صاف کرتی نماز کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بری نہیں تھی، نہ ہی وہ بری بن سکتی تھی، مگر اس کے باپ کا رویہ اسے برا بنانا چاہتا تھا، اس کے اندر موجود معصومیت کو ختم کرتا تھا۔ اس کا شک کرنا اسے اذیت دیتا تھا۔ جب تکلیف حد سے زیادہ ہو جائے تو انسان خود بخود منفی سوچوں کے گرد پھنس جاتا ہے، طرح طرح کے شر اس کے اندر سر اٹھانے لگتے ہیں، اور یہی رمشا کے ساتھ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی جان سے عزیز دوست سے بھی حسد کرنے لگی تھی۔ ڈی ایس پی طلال اسپیکنگ۔ گاڑی اسٹارٹ کرتے اس نے روڈ پر ڈالی اور موبائل سے آتی مسلسل کال کو اوکے کرتے موبائل کان سے لگایا اور اپنے مخصوص لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ اس کا ماتھا پل میں شکن ہوا تھا۔ ہاں، اس کیس کو میں خود ہینڈل کروں گا۔ جی آئی کی ٹینشن تم مت لو، تھینکس فار دی انفارمیشن۔ کہتے اس نے کال ڈسکنیکٹ کی اور موبائل سامنے رکھ کر گاڑی ڈرائیور کرنے لگا، مگر اسے کچھ تو محسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی میں کوئی غیر معمولی تبدیلی ضرور تھی، مگر کیا؟ اس کا دماغ سیکنڈ کے آخری حصے میں الرٹ ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے ریوالور نکالا اور گاڑی ایک طرف لگاتے گن لوڈ کی۔ اسے پکا یقین تھا کہ گاڑی میں ضرور کوئی اور بھی ہے، مگر کون؟ شاید کوئی مجرم یا پھر دشمن۔ اس کے دماغ نے اپنے خدشات ظاہر کیے
तो उसने फौरन सीट पीछे करते उसने गुम सीट के नीचे लपेटे वजूद पर तान दी, मगर सामने मौजूद हस्ती को देखकर तो तलाल का दिमाग सही मानों में घूम गया था। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? बाहर निकलो। वही कैफे वाली लड़की आंखें सख्ती से बंद किए छुपने की कोशिश कर रही थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेता है। बिल्कुल ऐसे ही कि एक पुल को तलाल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई, जिससे वो फौरन छुपा गया। कुछ देर खामोशी महसूस करते उसने चोरी चोरी एक आंख खोली तो सामने तलाल को घूरते पाकर फौरन से दोबारा आंखें बंद कर ली, जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। आंखें खोलो फौरन, वरना भी गोली मार दूंगा। तलाल ने गुस्से से कह दिया, तो फिर गन उस पर तानी तो डरते हुए फौरन आंखें पूरी की पूरी खोल गई। उठो और बैठो। एक और हुक्म सुनाया गया, जिसे वो फौरन मान गई और फिर अपनी फटी हुई चादर को जोर से पकड़ लिया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? कड़े जितनों से पूछता उसकी जान निकाल रहा था। मैं लड़की हूँ, आंखें थोड़ी सी ऊपर उठाकर बमुश्किल जवाब दिया गया तो तलाल का दिल किया उसकी समझदारी पर अश कर उठे। धीरे वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, उसने गुस्से से कहा तो अब की बार मुकाबिल के चेहरे पर भी नागवारी साफ झलक रही थी। इतने सवाल पूछ रहा, अगर मजबूरी ना होती तो अब तक उसका सर फाड़ चुकी वही कमीना कहीं का। नागवारी साफ झलक, दिल ही दिल में सोचने वो खामोशी से बैठी उसे देख रही थी। मुझे नहीं पता था ये तुम्हारी गाड़ी है। 2 लड़के मुझे तंग कर रहे थे, उनसे जान बचाने के लिए मैं उस गाड़ी में घुस गई। दिल में जल तो जलाल तो का विर्द करते उसने आहिस्तगी से जवाब दिया तो तलाल ने मशकूक नजरों से उसे देखते गन। अस्सलाम वालेकुम। ताइशा जो कि बारिश में मुकम्मल भीग चुकी थी और 20 मिनट की अनथक मेहनत के बाद उसे एक टैक्सी मिल ही गई। परेशानी से उसकी जान निकल जा रही थी। रूह की तबीयत का सोचते ही उसके आंसू खौफ बहुत निकलना शुरू हो गए तो टैक्सी वाले को लेकर मतलूबा जगह पहुंची, मगर वहां रोहात तो क्या उसका नामो निशान तक नहीं था। अब सही मानों में ताइशा के हाथ पांव फूले थे, हर तरफ छान मारा गया मगर वो कहीं नहीं थी। दिल में बड़े बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे, उसे जी भरकर गुस्सा भी आ रहा था। ना ही वो जिद करती और ना ही रोहात के साथ ये सब होता। जब कुछ ना हो सका तो वो वहीं पहुंचकर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। आंखें सुर्ख हो चुकी थी और जिस्म भी मुसलसल बारिश में भीगने की वजह से हल्का हल्का कपकपा रहा था। होंठ भी सर्दी की वजह से नीले हो चुके थे। बाजी, आपको जाना है कि नहीं? और भी काम है। वो रोने में मसरूफ थी जब टैक्सी ड्राइवर की झुंझलाई हुई आवाज़ से उसके आंसुओं को ब्रेक लगी तो वो होश की दुनिया में वापस आई। जज जी, आप मुझे गुलबर्ग टाउन ले चलें, उसने बमुश्किल खुद पर काबू पाते हुए कहा और चादर को अच्छे से अपने गिर्द लपेट कर टैक्सी में बैठ गई। जबकि दिल तो सिर्फ रोहाब में अटका हुआ था, इसलिए उसने अपने घर जाने के बजाय रोहाब के घर जाने का फैसला किया था ताकि उसके बाबा को बता सके, या अल्लाह तू मेरी रूह को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना, उसकी मदद करना मेरे मालिक, उसे हर तरह की आफत से महफूज रखना। या अल्लाह तुझे तेरे रहीम होने का वास्ता मेरे मालिक, उसे हर तरह की गंदगी और हवस से महफूज रखना। दिल ही दिल में उसकी सलामती की दुआएं मांगती वो अपने रब से मुखातिब थी। यही हमारे दौर का अलमिया है कि यहाँ एक लड़की को अपनी जान से ज़्यादा इज्जत की फिक्र होती है। जहाँ हर तरफ भेड़िए घूमते हैं, कोई अपनों के भेष में तो कोई गैरों के भेष में। यहाँ तो घर में भी लड़कियों की इज्जत महफूज नहीं है। अल्लाह हर बेटी की इज्जत को महफूज रखे, आमीन। शमशाहान ने पैसे थामे अपनी ही सोच में गुम थी। जब ठाका आवाज से दरवाजा खोल कर आई, कमरे में दाखिल हुआ तो उसने जल्दी से पीछे छुपा दिए, मगर फिर भी मुकाबिल की लड़का नजरें ये मंजर देख चुकी थी।
बेवकूफ, क्या छुपाया है तूने? हरामजादी, किसका खत है तेरे पास? उसके बाप ने नशे में दो लड़खड़ाते हुए जबान पे डर पे कई सवालात की बौछार कर दी और साथ ही गालियां भी बक दी, जिससे रमशा ने अजियत की इंतहा से आंखें बंद करते अपने लहू होते दिल को बामुश्किल से संभाल लिया। बाबा ऐसा कुछ नहीं है मम, तो ये बस किताब छुपा रही थी। उसने आंसू जब्त करते कमजोर सफाई पेश की, जबकि जानती थी कि उसका बाप किसी भी बात का यकीन नहीं करेगा। और हुआ भी यही, जब वो एकदम इतनी जोर से झाड़ के रिमशा का दिल कांप कर रह गया। चुप कर बदजात जबान लड़की, वो भी मुझसे? तो तेरी जबान गद्दी से खींच लूंगा कमीनी, तू भी बदजात है अपनी माँ की तरह। उसने जबान से आग उगलते हुए उसकी रूह को कई और जख्मों से नवाज दिया और इतनी भी इजाजत नहीं दी कभी कि वो उन जख्मों पर सी ही कर सके। चल, मेरा मुंह क्या देख रही है? दफा हो यहाँ से और खाना ला मेरे लिए। उसने नफरत से उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए कहा तो वो जल्दी से जान बख्शी होने पर कमरे से बाहर चली गई और वो वहीं उसकी छोड़ी चारपाई पर गिरता आंखें बंद करके दिया जबान से बेखबर हो गया। रमशा किचन के नाम पर मिट्टी से बने उस छोटे से कमरे में आ गई और वो वहीं जमीन पर बैठकर एक बार फिर अपनी किस्मत पर ज़ारो कतार रोने लगी। आखिर क्या कसूर था उसका जो उसे दुनिया में सिर्फ महरूमियां ही मिल रही थी? अम्मी जान, ये आपके गाल पर क्या हुआ? अपने छोटे से हाथों से अपनी माँ का चेहरा हाथों में लेकर वो पूछ रही थी और उसकी माँ आंखों में आए आंसुओं को वापस धकेलने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। कल आपने नमाज नहीं पढ़ी ना, तो अल्लाह ताला ने उसकी सजा मुझे दी है, उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। वह हैरानगी से अपनी माँ को देखने लगी। अम्मी, नमाज तो मैंने नहीं पढ़ी, तो अल्लाह ताला ने आपको क्यों सजा दी? उसने अपनी बड़ी बड़ी सुनहरी आंखों में हैरानगी समोए अपनी माँ से पूछा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। जी मेरी जान, जब हम अल्लाह से दूरी इख्तियार करते हैं, नमाज और कुरान को भूल जाते हैं, तो हमारे करीबी रिश्तों में हमें आजमा कर देख लेता है ताकि हम उसकी तरफ लौट जाएं। उसे गोद में बिठाए उसकी माँ उसे खुदा के कुर्ब का सबक सिखा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी कुछ भी गलत सीखे। अम्मी, आपको दर्द क्यों हो रहा है ना? उसकी आंखें फौरन पानी से भर गईं। नहीं चंदा, आप तो मेरी गुड़िया हैं, आपके लिए तो मैं क्या क्या भी सह सकती हूँ, लेकिन मेरी बेटी को वादा करना होगा कि वो किसी भी हाल में नमाज और कुरान को नहीं छोड़ेगी। उसकी आंखें चूमते उसकी माँ ने मोहब्बत से पूछा तो वह फौरन नफी में सर हिला गई। ना जाने कितना ही वक्त हो गया था उसे यहाँ बैठे अपनी माँ को याद करके एक दफा फिर से उसकी आंखें बरसने लगी थी, मगर वो अपनी माँ से सीखा सबक कभी नहीं भूल सकती थी, इसलिए आंसू साफ करती नमाज के लिए उठ खड़ी हुई। वो बुरी नहीं थी, ना ही वो बुरी बन सकती थी, मगर उसके बाप का रवैया उसे बुरा बनाना चाहता था। उसके अंदर मौजूद मासूमियत को ख़त्म करता था। उसका शक करना उसे अजियत देता था। जब तकलीफ हद से ज़्यादा हो जाए तो इंसान खुद ब खुद मनफी सोचों के गिर्द फंस जाता है। तरह तरह के शर उसके अंदर सर उठाने लगते हैं और यही रमशा के साथ हो रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी जान से अजीज दोस्त से भी हसद करने लगी थी। DSP तलाल स्पीकिंग। गाड़ी स्टार्ट करते उसने रोड पर डाली और मोबाइल से आरती मुसलसल कॉल को ओके करते मोबाइल कान से लगाया और अपने मखसूस लहजे में बात का आगाज किया। दूसरी जानिब से ना जाने क्या कहा गया था कि उसका माथा पुल में शकन हुआ था। हाँ, इस केस को मैं खुद हैंडल करूँगा। जी, आई की टेंशन तुम मत लो, थैंक्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। कहते उसने कॉल डिस्कनेक्ट की और मोबाइल सामने रखकर गाड़ी ड्राइवर करने लगा, मगर उसे कुछ तो महसूस हो रहा था। गाड़ी में कोई गैर मामूली तब्दीली जरूर थी, मगर क्या? उसका दिमाग सेकंड के आखिरी हिस्से में अलर्ट हुआ था। उसने जल्दी से रिवॉल्वर निकाला और गाड़ी एक तरफ लगाते गन लोड की। उसे पक्का यकीन था कि गाड़ी में जरूर कोई और भी है, मगर कौन? शायद कोई मुजरिम या फिर दुश्मन। उसके दिमाग ने अपने खदशात जाहिर किए तो उसने फौरन सीट पीछे करते
उसने गुम सीट के नीचे लपेटे वजूद पर तान दी, मगर सामने मौजूद हस्ती को देखकर तो तलाल का दिमाग सही मानों में घूम गया था। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? बाहर निकलो। वही कैफे वाली लड़की आंखें सख्ती से बंद किए छुपने की कोशिश कर रही थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेता है। बिल्कुल ऐसे ही कि एक फूल को तलाल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई, जिससे वो फौरन छुपा गया। कुछ देर खामोशी महसूस करते उसने चोरी चोरी एक आंख खोली तो सामने तलाल को घूरते पाकर फौरन से दोबारा आंखें बंद कर ली, जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। आंखें खोलो फौरन, वरना भी गोली मार दूंगा। तलाल ने गुस्से से कह दी तो फिर गन उस पर तानी तो डरते हुए फौरन आंखें पूरी की पूरी खोल गई। उठो और बैठो। एक और हुक्म सुनाया गया, जिसे वो फौरन मान गई और फिर अपनी फटी हुई चादर को जोर से पकड़ लिया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? कड़े जितनों से पूछता उसकी जान निकाल रहा था। मैं लड़की हूँ। आंखें थोड़ी सी ऊपर उठाकर मुश्किल जवाब दिया गया तो तलाल का दिल किया उसकी समझदारी पर अश अश कर उठे। धीरे धीरे वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, उसने गुस्से से कहा तो अब की बार मुकाबिल के चेहरे पर भी नागवारी साफ झलक रही थी। इतने सवाल पूछ रहा, अगर मजबूरी ना होती तो अब तक उसका सर फाड़ चुकी वही कमीना कहीं का। नागवारी साफ झलक। दिल ही दिल में सोचने वो खामोशी से बैठी उसे देख रही थी। मुझे नहीं पता था ये तुम्हारी गाड़ी है। दो लड़के मुझे तंग कर रहे थे, उनसे जान बचाने के लिए मैं उस गाड़ी में घुस गई। दिल में जल तो जलाल तो का विर्द करते उसने आहिस्तगी से जवाब दिया तो तलाल ने मशकूक नजरों से उसे देखते गन वापस रखी और गाड़ी स्टार्ट कर दी, और वो दिल ही दिल में बच जाने पर खुदा का शुक्र कर रही थी कि उस बला से जान छूटी। वहीं जमीन पर बैठकर एक दफा फिर अपनी किस्मत पर ज़ारो कतार रोने लगी। आखिर क्या कसूर था उसका जो उसे दुनिया में सिर्फ महरूमियाँ ही मिल रही थी। अम्मी जान, ये आपके गाल पर क्या हुआ? अपने छोटे से हाथों से अपनी माँ का चेहरा हाथों में लेकर वो पूछ रही थी, और उसकी माँ आंखों में आए आंसुओं को वापस धकेलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कल आपने नमाज नहीं पढ़ी ना, तो अल्लाह ताला ने उसकी सजा मुझे दी है, उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा तो हैरानगी से अपनी माँ को देखने लगी। अम्मी, नमाज तो मैंने नहीं पढ़ी तो अल्लाह ताला ने आपको क्यों सजा दी? उसने अपनी बड़ी बड़ी सुनहरी आंखों में हैरानगी समाये अपनी माँ से पूछा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। जी मेरी जान, जब हम अल्लाह से दूरी इख्तियार करते हैं, नमाज और कुरान को भूल जाते हैं, तो हमारे करीबी रिश्तों में हमें आजमा कर देख लेता है ताकि हम उसकी तरफ लौट जाएं। उसे गोद में बिठाए उसकी माँ उसे खुदा के कुर्ब का सबक सिखा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी कुछ भी गलत सीखे। अम्मी, आपको दर्द क्यों हो रहा है ना? उसकी आंखें फौरन पानी से भर गईं। नहीं चंदा, आप तो मेरी गुड़िया हैं, आपके लिए तो मैं क्या क्या भी सह सकती हूँ, लेकिन मेरी बेटी को वादा करना होगा कि वो किसी भी हाल में नमाज और कुरान को नहीं छोड़ेगी। उसकी आंखें चूमते उसकी माँ ने मोहब्बत से पूछा तो वो फौरन नफी में सर हिला गई। न जाने कितना ही वक्त हो गया था उसे यहाँ बैठे अपनी माँ को याद करके एक दफा फिर से उसकी आंखें बरसने लगी थी, मगर वो अपनी माँ से सीखा सबक कभी नहीं भूल सकती थी, इसलिए आंसू साफ करती नमाज के लिए उठ खड़ी हुई। वो बुरी नहीं थी, ना ही वो बुरी बन सकती थी, मगर उसके बाप का रवैया उसे बुरा बनाना चाहता था, उसके अंदर मौजूद मासूमियत को ख़त्म करता था। उसका शक करना उसे अजियत देता था। जब तकलीफ हद से ज़्यादा हो जाए तो इंसान खुद ब खुद मनफी सोचों के गिर्द फंस जाता है। तरह तरह के शर उसके अंदर सर उठाने लगते हैं, और यही रमशा के साथ हो रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी जान से अजीज दोस्त से भी हसद करने लगी थी।
DSP तलाल स्पीकिंग। गाड़ी स्टार्ट करते उसने रोड पर डाली और मोबाइल से आरती मुसलसल कॉल को ओके करते मोबाइल कान से लगाया और अपने मखसूस लहजे में बात का आगाज किया। दूसरी जानिब से ना जाने क्या कहा गया था कि उसका माथा पुल में शकन हुआ था। हाँ, इस केस को मैं खुद हैंडल करूँगा। जी, आई की टेंशन तुम मत लो। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। कहते उसने कॉल डिस्कनेक्ट की और मोबाइल सामने रख कर गाड़ी ड्राइवर करने लगा, मगर उसे कुछ तो महसूस हो रहा था। गाड़ी में कोई गैर मामूली तब्दीली जरूर थी, मगर क्या? उसका दिमाग सेकंड के आखिरी हिस्से में अलर्ट हुआ था। उसने जल्दी से रिवॉल्वर निकाला और गाड़ी एक तरफ लगाते गन लोड की। उसे पक्का यकीन था कि गाड़ी में जरूर कोई और भी है, मगर कौन? शायद कोई मुजरिम या फिर दुश्मन। उसके दिमाग ने अपने खदशात जाहिर किए तो उसने फौरन सीट पीछे करते उसने गुम सीट के नीचे लपेटे वजूद पर तान दी, मगर सामने मौजूद हस्ती को देखकर तो तलाल का दिमाग सही मानों में घूम गया था। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? बाहर निकलो। वही कैफे वाली लड़की आंखें सख्ती से बंद किए छुपने की कोशिश कर रही थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेता है। बिल्कुल ऐसे ही कि एक फूल को तलाल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई, जिसे वो फौरन छुपा गया। कुछ देर खामोशी महसूस करते उसने चोरी चोरी एक आंख खोली तो सामने तलाल को घूरते पाकर फौरन से दोबारा आंखें बंद कर लीं, जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। आंखें खोलो फौरन, वरना भी गोली मार दूंगा। तलाल ने गुस्से से कह दी तो फिर गन